Dear students, so moving on further, in the last class we have started with the chapter number 3 of civics, that is parliament and making of laws. In this chapter, moving on further, we are going to start with prime minister and council of ministers. Prime minister is the head of the ruling party, the party which has won the majority in the elections. Prime Minister is the head of the Council of Ministers. What is the other functions of the Prime Minister? Prime Minister's aids and advise the President on various political as well as the issues related to the country. Prime Minister is the leader of the party or coalition of parties having absolute majority in the House of People. House of People here means लोक सभा. जो पार्टी इलेक्शंस में जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं या जिन कोलिशन ऑफ पार्टीज़ का मतलब होता है कि अगर एक पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिले हैं तो 2 या 3 पार्टीज़ मिलकर कोलिशन कर लेती हैं, आपस में गठबंधन कर लेती हैं, एंड द लीडर ऑफ दोज पार्टीज़ इज़ नोन एज द प्राइम मिनिस्टर. Other function of prime minister, that is the prime minister and his council of ministers. Later on in this video we are going to study about the council of ministers also. Is the most powerful institution, as we discussed in our previous video also, that is in India the parliamentary form of government is there. There are 2 types of government. One is parliamentary form of government and second is presidential government. And in India, out of these 2, we are following the parliamentary form of government. Now moving on further, we are going to study about the appointment. Who is going to appoint the Prime Minister of India? मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्शंस में जो भी पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है, मींस जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए एमपीज़ होते हैं, दैट पार्टी, द लीडर ऑफ दैट पार्टी, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ डन बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. One more option is there. If there is no majority, then president has options to appoint any person if there is no majority of any of the party of the country. So these are the functions as well as how the prime minister is appointed. Moving on further, there is an important term, that is council of ministers. Now what is this council of ministers? Normally whenever we talk about council of ministers, हम जब भी बात करते हैं तो हम कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सेम समझते हैं, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू. There are 3 types of ministers, that is cabinet ministers, then ministers of state and deputy ministers. We are going to study about them one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में. हु आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स? इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो. कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं. सी द प्राइम मिनिस्टर अलोन कैन नॉट डू द होल वर्क. आपकी कंट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक डिफेंस इज़ देयर, like railway is there, like transportation is there, communication is there, HRD is there. So ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स प्राइम मिनिस्टर अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं. ही नीड द हेल्प ऑफ सम ऑफ द मिनिस्टर्स. जितने भी एमपीज़ लोकसभा में इलेक्ट होने के बाद जाते हैं, उन एमपीज़ में से कुछ पर्सनस को प्राइम मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री बना देते हैं, वन और मोर देन वन department, like HRD minister, who is our present HRD minister, Prakash Javadekar. Communication minister, who is Shri Ravi Shankar Prasad. Defense minister, who is
डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। सो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन द कैबिनेट मिनिस्टर्स, एंड दीज कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्ड मीटिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड these cabinet ministers also help the prime minister in the formulation of policies and programs of the government. Then next is ministers of state. Now who are this? This is the second category. Second category में जो ministers आते हैं after the cabinet minister, they are known as the minister of states. First of all let me make it clear, ministers of states के पास किसी डिपार्टमेंट का होना, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री होना या ना होना ज़रूरी नहीं है. देन अगेन पीएम उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, पीएम उनसे कंसल्ट नहीं भी कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें कैबिनेट मिनिस्टर्स से नीचे वाली जो कैटेगरी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास तो हर एक तरह अपना अपना पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है और वो अपनी मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड कैबिनेट मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं कौन? कैबिनेट मिनिस्टर्स. बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द cabinet meetings. Then next category we are having, that is deputy ministers. Now this is our third category of ministers. What are the work of these category of ministers? They assist cabinet and council of ministers in their day to day work, and they are also not the part of the cabinet meetings. So what is the cabinet here? Cabinet strength is to be 15% of the Lok Sabha and state legislator. Here we are going to study about Lok Sabha. मैंने आपको लास्ट वीडियो में लोक सभा की स्ट्रेंथ बताई थी. तो जितनी भी लोक सभा की स्ट्रेंथ है, हाउ मच इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोक सभा? 552 मेंबर्स. उसका 15% जो है दैट हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स. देन फॉर्मेशन, हाउ दिस इज़ फॉर्म्ड, के क्या करते हैं? दे आर स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट लीडर्स, डिसाइड मेजर पॉलिसीज़. दे आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर बिकॉज इनको प्राइम मिनिस्टर अलग अलग मिनिस्ट्रीज प्रोवाइड कराते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं अबाउट देयर पर्टिकुलर मिनिस्ट्री. देयर डिसीजंस अदर मिनिस्टर हैव टू फॉलो देयर डिसीजंस ऑल्सो. अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट. अब प्राइम मिनिस्टर किनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, किनको जो है प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट देते हैं? ऑब्वियसली वन इज सीनियर लीडर्स, ट्रस्टवर्दी. हाउ दे आर अपॉइंटेड? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट President of India appoint the ministers, cabinet ministers only on the advice of the Prime Minister of India. जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं किन पर्सन्स को डिपार्टमेंट प्रोवाइड करना है, किन पर्सन्स को किस मिनिस्ट्री में लेकर आना है, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज कैबिनेट मिनिस्टर्स. नेक्स्ट इज टर्म ऑफ ऑफिस. I have already told you Prime Minister is chosen for 5 years. जब लोक सभा इज़ अ टेम्परेरी हाउस जो 5 years के लिए चूज़ होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसको बिफोर 6 months डिज़ोल्व करवा सकते हैं थ्रू प्रेसिडेंट. सो ऑब्वियसली जब तक पार्टी मेजोरिटी में रहेगी तब तक कैबिनेट मिनिस्टर्स अपनी मिनिस्ट्री में रहेंगे. यूजुअली इट इज़ 5 years. And when the ministers are chosen, I have just told you कि उनको कौन अपॉइंट करते हैं? उनको कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. तो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है विच इज़ गिवन बाय द प्रेसिडेंट. और वो कब तक रहेंगे? आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि व्हेन टिल दे आर in majority or if no confidence motion is passed. Now what is this no confidence motion? कि अगर कोई आपकी वर्क से, आपकी मिनिस्ट्री से, आपके मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से के वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है
तो दे कैन पास द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट यू. एवरी मिनिस्टर हैज़ टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा. येस मीन्स व्हाट डज इट मीन कि अगर आपको कोई डिपार्टमेंट मिल रहा है, अगर आपको मिनिस्ट्री मिल रही है, तो आप इलेक्शंस वन करके आए हो. या तो आप राज्यसभा के मेंबर हो या आप लोकसभा के मेंबर हो. अगर आप नहीं हैं तो विद इन द 6 months आपको राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा. Powers and functions of the cabinet. Administrative powers. There are some powers which the cabinet ministers are having. First is administrative powers. Now what is this administrative powers? First is policy making. Country के अंदर या कंट्री के बाहर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही बनाते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस, इकोनॉमी एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट. आप पॉलिसीज़ तो बना दी, पॉलिसीज़ को बनाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, उन पॉलिसीज़ को कंट्री में इम्प्लीमेंट कराना भी कैबिनेट मिनिस्टर्स का ही काम है. नेक्स्ट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, सिविल सर्वेंट. देन उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो पॉलिसीज़ हैं वो कंट्री में ईजिली इम्प्लीमेंट हो सके. देन वेरियस अपॉइंटमेंट. Who does the appointment like Chief Justice of India, Chief Justice of Supreme Court, High Courts, various other appointments. These are done by the President of India. But President of India इज़ एडवाइज्ड बाय द कैबिनेट मेंबर्स. जो कैबिनेट होती है कंट्री की वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं अबाउट द वेरियस अपॉइंटमेंट. दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द कैबिनेट. देयर आर सम लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द कैबिनेट ऑल्सो. नाउ व्हाट आर दिस लेजिस्लेटिव पावर? लेजिस्लेटिव पावर्स को आपको समझने से पहले लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब पता होना चाहिए. लेजिस्लेटिव पावर्स आर दोज पावर्स विच आर रिलेटेड टू लॉ मेकिंग इन द कंट्री. कंट्री में लॉ बनाने के लिए क्या क्या पावर्स होती हैं कैबिनेट्स के पास में? तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल. बिल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था व्हाट इज़ बिल. जब भी कंट्री में कोई नया लॉ बनाना होता है तो जब तक वो लॉ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट से अप्रूव नहीं हो जाता है तब तक वो बिल रहता है, उसको हम बिल कहते हैं. और जब वो इन तीनों से कैबिनेट, लोकसभा से, राज्यसभा से एंड प्रेसिडेंट से क्लियर हो जाता है देन इट बिकम्स द लॉ. सो दिस इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर. जिस भी मिनिस्ट्री में हमें उस बिल को इंट्रोड्यूस करना है, जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो बिल है, वो कानून में बदलाव होना है, वो मिनिस्ट्री उस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करती है. देन सी इन एवरीवेयर अगर हम लोकसभा की बात करें, ऑपोजिशन पार्टी इज़ ऑल्सो देयर. तो द कैबिनेट मिनिस्टर्स दे आर आंसरेबल टू द ऑपोजिशन. ऑपोजिशन उनसे उनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस करती है एंड दे हैव टू गिव द आंसर्स टू देम. देन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट का मतलब होता है सी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. बट उसके बाद भी हमें जब लगा है कि किसी पर्टिकुलर लॉ में कुछ ना कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो हमने उसमें चेंजेस किए हैं, हमारे मिनिस्टर्स ने उसमें चेंजेस किए हैं. दिस इज़ नॉन एज द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. देन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से कैबिनेट मिनिस्टर्स उसको रन करते हैं. देन दे आर द प्रेसिडेंट को हेल्प करते हैं वेरियस अपॉइंटमेंट्स करने में. अब है फाइनेंशियल पावर्स. व्हाट आर द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स? फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रिपेयर करते हैं कंट्री के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर्स पिछला और आने वाला फ्यूचर का जो बजट है सारा डिस्कस करते हैं विद द फाइनेंस मिनिस्टर. ग्रांट्स, कहाँ पर ग्रांट्स चाहिए, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स. इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल ओनली इन लोकसभा. येस, मनी बिल मीन्स हेयर बजट.
See, we are having two houses. One is Parliament, one is Lok Sabha and other is the Rajya Sabha. नॉर्मल जो बिल होते हैं, नॉर्मल जो लॉज बनते हैं, वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, लेकिन उनका इन दोनों हाउसेज में पास होना ज़रूरी है. बट अगर हम बजट की बात करते हैं, अगर हम मनी बिल की बात करते हैं, मनी बिल कैन ओनली एंड ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. और जब ये मनी बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो ये राज्यसभा में पास होने के लिए जाता है और राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है. राज्यसभा इसको सिर्फ डिले कर सकती है एंड दैट टू ओनली फॉर 14 डेज. 14 डेज से ज़्यादा राज्यसभा मनी बिल को डिले नहीं कर सकती है. देन नेक्स्ट वी आर हैविंग money bill is introduced in the Lok Sabha only. So this is what is the power of the Rajya Sabha, Lok Sabha and the cabinet. And next is president. President is the nominal head of the state. See, prime minister is the head of the government and president is the head of the state. Like cabinet of ministers, president also have the tenure of 5 years. And like prime minister, like council of ministers, president of India also have some of the powers. They like executive powers, legislative power. Executive powers means various appointments, जैसे अभी हमने स्टडी किया ही है, are done by the president on the advice of the prime minister and council of ministers. Legislative power means president can convey the session of the पार्लियामेंट के जो वेरियस सेशंस होते हैं, लाइक मॉनसून सेशन है या विंटर सेशन है, समर सेशन है, ये सब प्रेसिडेंट की परमिशन से ही चलते हैं. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं. एंड प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एक साथ भी रन कर सकते हैं या अलग अलग भी रन कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? सी, कैबिनेट बजट प्रिपेयर करती है, कैबिनेट लोकसभा में बजट को पेश करती है, लेकिन वो बजट एट द एंड प्रेसिडेंट ही उसको पास करते हैं, उन्हीं से उसको अप्रूव करवाया जाता है. जुडिशियल पावर, व्हाट आर द जुडिशियल पावर? प्रेसिडेंट ऑफ इन कंट्री अपॉइंट्स वेरियस चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज ऑफ द हाई कोर्ट. एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पावर दैट president of country have, that is president is having the power to grant pardon or to reprieve the punishment of any person. मीन्स प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि अगर किसी पर्सन को, किसी कल्प्रिट को डेथ सेंटेंस दी गई है, डेथ सेंटेंस का मतलब होता है फांसी की सज़ा दी गई है, तो वो एट द एंड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के पास पिटीशन फिल कर सकते हैं. लेकिन प्रेसिडेंट के पास पिटीशन फाइल करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है उसको माफ़ कर दिया जाएगा. इट इज़ ओनली इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द वेरियस अदर मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स कि ही कैन आइदर पार्डन और ही कैन रिमेन with the death sentence of the person. So this is what the chapter is all about. In the assignment I have sent you some of the questions of this chapter also. आप उन questions को अपनी notebook में अच्छे से note कीजिएगा. And if you are having any problem in any question or any part of the chapter, you can ask me at any time. Have a good day.